Hi everyone, IMS is here again with yet another important video for you all, especially for the law aspirants. So in this session, we would be discussing about if you have not scored well in CLAT, so what are the other options, what exactly you need to do. So before that, first of all, let me introduce myself. I'm Akash Srivastav. I'm a Chief Law Mentor associated with IMS. I'm also an alumnus of NLU Raipur. So as you can see on my screen that it's showing that didn't score well in CLAT 2023. So before CLAT happened, we were majorly focusing on CLAT. ठीक है कि CLAT को कैसे क्रैक करना है, what are the strategies, what are the resources you need to utilize. But once CLAT is done, so we all know that CLAT is done, scores are out, counseling rounds are in progress. So first round हो चुका है, second round हो चुका है, and pretty much you have an idea कि exactly whether you are getting an admission into NLU or not. But when we started our preparation, we were pretty much sure कि ठीक है CLAT ही crack करना है. This should be the main aim, main goal. But once CLAT is done, abhi the major concern of majority of the student, because when we talk about the ratio, when we talk about the numbers, we see that out of 60,000 applicants, only 3,000 applicants got an admission. So what about other 57,000 students? So the major concern, major doubt, major query that I'm receiving right now is that what are the other options? What should I do? Because when I started my preparation, I was totally focusing on CLAT. कि CLAT ही क्रैक करना और CLAT ही हो जाएगा मेरा. But अभी for those students who have not able to score well in CLAT examination, what are the other options? So in this session, I, Akash Srivastav, will be focusing on 5 major points. The first point would be, is CLAT an end? The second point would be that I would be discussing that what exactly you need to do from other colleges to get success in law career. The third option, the third thing that I would be discussing is that once you have eliminated your NLU options. चलो ठीक है, NLU अभी तो नहीं क्रैक हुआ for all those students जिनका स्कोर अच्छा नहीं है. So what are other colleges that you can target? Then one important aspect right now, one important thing that we need to discuss right now is that when we discussed about CLAT, we talked about any set of questions that you need to practice, any particular format that you need to practice, different set of patterns थे. ठीक है, when we talk about CLAT versus other examinations, अलग-अलग patterns हैं. So how you need to switch your gears, that will be the fourth point of concern in today's session. And then in last, I would be discussing about one of the most important thing that every law aspirants have, ki whether we should take a gap year or not. So through these 5 pointers, I will be taking you with in this particular session. So let's start the session. As I said that I'm Akash Srivastav, Chief Law Mentor with IMS, and I'm an alumnus of NLU Raipur. So the first thing is that CLAT was just a learning and not the end. So this is very important for everyone, because if you will say कि चलो ठीक है यार CLAT ही मेन एग्जाम था, अब तो CLAT नहीं हुआ, अब तो लाइफ खराब हो गई मेरी, अब तो मुझे लॉ किसी भी रैंडम कॉलेज से करना पड़ेगा, that should not be in your mind. So when we are talking about CLAT, that was just a learning. थिंक कि तुमने CLAT के लिए प्रिपरेशन किया, इट्स नेवर गोना वेस्ट. ठीक है, जो भी तुमने कॉन्सेप्ट रीड किए, जो भी तुमने सब्जेक्ट्स के लिए तुमने प्रिपेयर किया, वो वेस्ट नहीं हुआ. इट वाज जस्ट अ लर्निंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे why exactly we were focusing on CLAT, why exactly we were focusing on NLU, because we want a successful career in law, because that is the end goal. CLAT में NLUs में enter करना is not our goal. चलो ठीक है, अगर एंटर करते तो प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथ होता, बट द एंड गोल इज नॉट टू एंटर इनटू एनएलयू और स्टडी इन एनएलयू. ठीक है, एनएलयू में पढ़ के टू बी सक्सेसफुल इन लॉ करे. सो अपने लॉ लाइफ में तुम्हारा सक्सेस इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एनएलयू. सो कीप वन थिंग इन माइंड कि चलो ठीक है एनएलयू क्रैक नहीं हुआ, तुम्हारा CLAT एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ, दैट इज नॉट एन एंड. तुमने बहुत सारी चीजें लर्न की, बहुत सारी चीजें तुमने सीखी, दैट यू कैन यूटिलाइज, that you can use in further examinations. And one thing should be very much clear कि सिर्फ this is one of the way, एक रास्ता था तुम्हारे लिए कि तुम अगर NLU के थ्रू जाते, अपना NLU में एडमिशन मिलता, उसके बाद तुम्हारा करियर होता, वो शायद थोड़ा सा स्मूथ होता. बट नो कॉलेज विल गिव यू अ गारंटी कि तुम्हारा अगर NLU में हुआ है देन तुम सक्सेसफुल हो गए अपने लॉ करियर में. दैट इज नेवर अ गारंटी. बस एक बेटर स्मूथ बेटर वे तुम्हारा हो जाएगा, दैट्स इट. तो दिस शुड बी वेरी मच क्लियर इन माइंड कि ये तुम्हारा सिर्फ लर्निंग था. अगर CLAT क्रैक नहीं हुआ तो ये सिर्फ एक लर्निंग था, ये तुम्हारा एंड नहीं है. ठीक है, आई एम नॉट ओनली सेइंग, आई विल प्रूव दिस. सो you can see that we will be discussing about few examples of lawyers जो कि NLU से नहीं थे फिर भी बहुत सक्सेसफुल हुए अपने लॉ करियर में. So the first example is of Sanjeev Ganguly. As you can see, he is currently working as legal manager with the ICICI Bank. So you will say कि सर ये पास आउट कहाँ का था, ये NLU का था या नॉन NLU का था.
सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन दैट ही वॉज ए पास आउट ऑफ सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, ठीक है। ये एनएलयू का बैकग्राउंड नहीं है, बट अगेन उसने बहुत अच्छा किया होगा अपने लॉ स्कूल लाइफ में। 5 years जो भी उसने पढ़े लॉ, जिस भी तरीके से पढ़ा, जो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसमें एक्सेल किया होगा। दैट्स व्हाई ही लैंडेड इन आईसीआईसीआई बैंक एज ए लीगल मैनेजर and he was a pass out from Symbiosis Law School, Pune. Second example is Aviral Sahai. Again, he is senior associate at Saral Amarchand Mangaldas. So, अमरचंद का तुम अगर नाम सर्च करोगे वो टॉप 5 लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया में आएगा, ठीक है। अगेन ये बंदा कहाँ का पास आउट था? फ्रॉम जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, अगेन नॉन एनएलयू बैकग्राउंड, ठीक है। अगेन टॉप लॉ फर्म्स भी अगर सीनियर एसोसिएट बना रही है ऐसे स्टूडेंट को जो कि नॉन एनएलयू बैकग्राउंड का है, इसका मतलब तुम्हारा किस कॉलेज से पढ़ के आए हो वो तुम्हारा मैटर करता है, बट पूरा डिपेंडेंट नहीं होता है तुम्हारा करियर कि तुम एनएलयू के हो या नॉन एनएलयू के हो। थर्ड एग्जांपल इज राहुल डोंडे। अगेन ही इज अ सीनियर एसोसिएट विद लेवे कॉफमैन कोलर बैंक। ये अगेन ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका बैकग्राउंड क्या है? ही इज फ्रॉम जीएलसी मुंबई, अगेन नॉन एनएलयू बैकग्राउंड। सो यू कैन सी थ्रू दीज एग्जांपल्स की जरूरी नहीं है कि तुम्हें एनएलयू में अगर तुम्हें एडमिशन मिला, तुम एनएलयू से नहीं पास आउट हो तो तुम्हारा करियर खत्म। नेक्स्ट वन इज ऋषभ मस्तराम। ही इज अगेन अ फाउंडर ऑफ ए कॉर्पोरेट लॉ फर्म आरजीएम लीगल। उसने अपनी लॉ फर्म खोल ली। अगेन ही वाज फ्रॉम एसवीकेएम जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ, नॉन एनएलयू बैकग्राउंड। तो ये भी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड कॉलेज नहीं है। सो अपार्ट फ्रॉम मुंबई के स्टूडेंट शायद जानते भी होंगे जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ के बारे में, बट मुंबई के बाद मुंबई के आगे कोई जानता भी नहीं होगा। बट अगेन उसने अपनी लॉ फर्म खोली यानी वेरी सक्सेसफुल इन हिज लॉ करियर। नेक्स्ट वन इज, ये अभी तक हमने एग्जांपल दिए ऐसे स्टूडेंट्स के, ऐसे पर्सनालिटीज के जिन्होंने लॉ फर्म में कुछ अच्छा किया या फिर प्राइवेट सेक्टर में अच्छा किया। बट अगेन श्रुति त्रिपाठी, शी इज करेंटली वर्किंग एज ए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर सीबीआई, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में, एंड अगेन शी इज ए पास आउट फ्रॉम आईएलएस पुणे। सो थ्रू दीज एग्जांपल्स यू कैन अंडरस्टैंड कि अगेन दिस इज जस्ट ए स्मॉल बिट ऑफ एग्जांपल। 5-6 एग्जांपल्स मैंने दिए तुम्हें, इस तरीके से एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगे तुम्हारे पास। एनएलयू का जो ट्रेंड है वो अभी रिसेंट का है, बट पास्ट में जितने भी टॉप लॉयर्स हैं उसमें तुम देखोगे कि दैट जो भी अपने ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज से, जो भी अपने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से, वहां से वो पास आउट थे एंड दे वर नॉट फ्रॉम एनएलयूज। सो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए, दैट टू कीप इन योर माइंड योर सक्सेस इन लॉ मेजरली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू इन लॉ स्कूल एंड नॉट ओनली ऑन कॉलेज यू स्टडी फ्रॉम। जहां से पढ़ोगे, ब्रांड नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल नेवर डिनाई दैट कि तुम्हारा ब्रांड नेम मैटर नहीं करेगा, बट तुम्हारा सक्सेस पूरा का पूरा उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। आई विल टेल यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस कि किन किन चीजों पे तुम्हारा सक्सेस डिपेंडेंट है। सो एक तुम्हारा फैक्टर था, तुम्हारा अगर एनएलयू में एडमिशन होता, तुमने क्लैट क्रैक किया होता तो प्रोसेस स्मूथ होता, सब चीजें बेटर होती। बट अगेन ऐसा नहीं है कि किसी और कॉलेज में वो फैसिलिटीज नहीं है, वो तुम्हारे पास करियर ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज सेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा था कि किस किस फैक्टर पे तुम्हारा सक्सेस डिपेंड होता है, किस किस फैक्टर पे तुम्हारा प्लेसमेंट डिपेंडेंट होता है, किस किस फैक्टर पे तुम्हारा इंटर्नशिप डिपेंडेंट होता है। सो द फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट। सो वॉट एवर इज बीइंग टॉट टू यू इन लॉ स्कूल, तुम्हारा सबसे बड़ा फैक्टर होगा तुम्हारा एकेडमिक्स। तुम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है, तुम किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो, दैट इज द मेजर फैक्टर दैट विल बी डिपेंड, योर करियर विल बी डिपेंडेंट ऑन। तुम अगर एनएलयू से हो, वेल एंड गुड। अगर एनएलयू से नहीं भी हो, किसी रैंडम कॉलेज से भी हो, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हो, किसी और बेटर कॉलेज से हो, देन तुम्हारा एकेडमिक्स पहला फैक्टर होता है दैट द लॉ फर्म्स एंड ऑल द प्लेसमेंट वाला कंपनीज विल टेक इन टू कंसिडरेशन, ठीक है। So you need to, so if for example if you are say from Symbiosis Law School Pune, ठीक है, तुम एनएलयू बैकग्राउंड नहीं है, तो पहली ड्यूटी तुम्हारी क्या हो जाएगी? टू बिल्ड योर एकेडमिक्स। तुम्हें एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज इंटर्नशिप्स। अगेन तुम एनएलयू से हो, नॉन एनएलयू से हो, इंटर्नशिप हर जगह इंपॉर्टेंट है। सो अगर तुम एनएलयू से भी हो और तुमने इंटर्नशिप नहीं की, तुमने एकेडमिक्स अपना अच्छा नहीं किया, सो डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें अच्छे लॉ फर्म में जॉब मिलने वाली है। सो एनएलयू में जाओगे तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज बेटर रहेंगी, नॉन एनएलयू में भी रहेंगी। कुछ कॉलेजेस वी विल बी डिस्कसिंग टुडे जहां पे तुम्हारे पास ऑप्शंस बेटर हैं। बट इंटर्नशिप किस तरीके से करो, किसी भी कॉलेज से हो, अगर इफ यू आर गेटिंग गुड इंटर्नशिप्स, तुम वहां पे इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते हो, देन अगेन इट विल एड टू द होल सीवी ऑफ योर्स, जो कि एंड रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारा बेटर प्लेसमेंट। सो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पे तुम्हारा सक्सेस डिपेंडेंट होगा वो रहेगा रिसर्च पेपर पब्लिकेशन। सो अगर तुम्हारा एकेडमिक्स स्ट्रांग है, तुम्हारा इंटर्नशिप तुमने अच्छी जगह करके रखा है, देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रिसर्च पेपर पब्लिकेशन। सो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, बहुत सारे लॉ जर्नल्स होंगे जो कि इनवाइट करेंगे ऑन एनी पर्टिकुलर थीम जहां पे तुम अपने व्यूज प्रेजेंट करो। सो इफ फॉर एग्जांपल इफ आई एम इंटरेस्टेड इन कॉर्पोरेट लॉ और मुझे अपना करियर बनाना है कॉर्पोरेट लॉ में, सो मुझे इंटर्नशिप भी कॉर्पोरेट लॉ में करनी होगी। किसी फर्म जो कॉर्पोरेट लॉ में प्रैक्टिस करती हो, मुझे मूड कोर्ट
कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो आई विल हैव टू प्रेजेंट माई व्यूज रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के थ्रू। मुझे ये दिखाना पड़ेगा दैट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दैट। सो दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर। मूविंग हेड गाइस, फोर्थ वन इज मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन। सो आई होप एवरीवन इज अवेयर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है। इफ यू आर नॉट अवेयर, दिस इज जस्ट एन रेप्लिका, ठीक है। एज यू सी इन कोर्ट किस तरीके से होता है, दे विल बी जजेस सिटिंग ओवर देयर, दो पार्टीज होंगी, दो एडवोकेट्स होंगे, दे विल बी फाइटिंग केस ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। द सेम रेप्लिका होता है अपना मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे तुम्हारे पास एक केस दिया जाता है, यू विल हैव टू फाइट ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। तुम पिटिशनर साइड से भी, रिस्पोंडेंट साइड से, दोनों साइड से तुम अपने मैटर्स, अपने मेमोरियल प्रिपेयर करते हो, अपने आर्गुमेंट प्रिपेयर करते हो, एंड देन यू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ लॉ स्कूल लाइफ, कि तुम एग्जैक्टली जिस तरीके से कोर्ट में 5 years के बाद तुम जाकर के एंटर करोगे, वो तुम पहले से एक्सपीरियंस करते हो। एंड हाउ वेल यू परफॉर्म इन दीज मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, ये भी तुम्हारा एक मेजर फैक्टर रहता है टू गेट ए जॉब। नेक्स्ट वन इज कल्चर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। सो यू मे बी थिंकिंग चलो ठीक है, अकेडमिक समझ में आता है, इंटर्नशिप समझ में आता है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन समझ में आता है, एंड मूड कोर्ट कंपटीशन भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, ये चारों फैक्टर्स हो सकते हैं टू गेट ए जॉब, या फिर ये चारों फैक्टर्स पे मेरा सक्सेस डिपेंड हो सकता है कि चलो ठीक है, मैंने अगर नॉन एनएलयू बैकग्राउंड का भी हूं, तो अगर मैंने इन 4 फील्ड में एक्सेल किया है, देन आई कैन बी श्योर कि मुझे अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल जाएगा। बट बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे लॉ फर्म्स हैं जो इन फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन में लेते हैं कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा परफॉर्म करते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग, जो कि इक्वली फोकस करते हैं इन सब एक्टिविटीज पे भी, सो दैट तुम इसमें भी एक्सेल करके यू कैन मेक योर करियर। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द 5 फैक्टर्स जो कि जिस पे भी तुम 5 years लॉ स्कूल में जिस तरीके से तुम इन 5 फैक्टर्स पे, इन 5 एरियाज पे जिस तरीके से वर्क करते हो, उस पे पूरा डिपेंड होता है तुम्हारा। सो मूविंग हेड, सो वी डिस्कस्ड कि तुम एनएलयू बैकग्राउंड से नहीं हो, दैट इज नॉट एन एंड। वी डिस्कस्ड कि किन सब फैक्टर्स पे तुम्हारा सक्सेस डिपेंड होता है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज कि चलो ठीक है, एनएलयू तो नहीं है, बट वी नीड कॉलेज ना, वी नीड कॉलेज टू स्टडी लॉ, और ऐसा कॉलेज चाहिए जिसे वी कैन टारगेट अपार्ट फ्रॉम एनएलयू। तो एनएलयू नहीं भी हुआ तो इन 5 कॉलेजेस, इन 7 कॉलेज को अगर मैं टारगेट करूंगा, तो रिजल्टेंट जो होगा, जो रिजल्ट निकलेगा 5 years डाउन द लाइन, वो ऑलमोस्ट पार पे रहेगा तुम्हारे किससे, एनएलयू से। So the first college according to me is Jindal Global Law School. Again, there is no ranking, no as such ranking, but these are the list of colleges and mode of admission. किस कॉलेज में एंटर करने के लिए तुम्हें कौन सा एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, एंड द नंबर ऑफ सीट्स ओवर देयर। सो इफ यू विल सी द नंबर ऑफ सीट्स इन टोटल, देयर आर मोर देन 3000 सीट्स, ठीक है। क्लैट में कितनी सीट्स थी, 3000 प्लस सीट्स। सो यू कैन सी कि 3000 सीट्स में तुम्हारा नहीं हुआ, बट अगेन यू आर गेटिंग एडिशनल 3000 सीट्स, ठीक है। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में मोड ऑफ एडमिशन इज LSAT इंडिया। अगेन दिस इज ए वेरी गुड लॉ स्कूल इन इंडिया। अगेन इट्स ए प्राइवेट लॉ स्कूल। JLC मुंबई एंड ILS पुणे, इसके लिए तुम्हें MS लॉ CT एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। अगेन इट्स ए गवर्नमेंट लॉ स्कूल, फीस तुम्हारी बहुत कम होगी, बट आउटपुट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। देन अगेन सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, स्लैट तुम्हारा एग्जाम है जिसे तुम्हें क्रैक करना पड़ेगा। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटीज इंडिया में 4 जगह हैं, तुम किसी भी कैंपस में जाओगे यू विल गेट द सेम आउटपुट। देन निर्मा यूनिवर्सिटी, अगेन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसमें क्या होता है, दे एक्सेप्ट क्लैट का स्कोर। सो अगर तुम्हारा अच्छा रैंक नहीं आया है क्लैट में, तो तुम्हें एनएलयूज तो नहीं मिल रहे हैं, बट अदर इंस्टीट्यूट्स भी क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, एंड देन यू कैन ट्राई फॉर निर्मा। नेक्स्ट वन इज NMIMS। NMIMS आई होप मुंबई किड्स नो अबाउट इट, आउटसाइड मुंबई भी बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे इनके इंस्टीट्यूट्स हैं। सो दे डू एक्सेप्ट क्लैट का स्कोर, LSAT इंडिया का स्कोर, एंड देयर ओन एग्जामिनेशन NLAT का स्कोर, एंड द नंबर ऑफ सीट्स आर अराउंड 900। नेक्स्ट वन इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इनका एक सेपरेट एग्जामिनेशन होता है CULEE के नाम से, एंड द नंबर ऑफ सीट्स आर 300। एंड द लास्ट वन इज UPS देहरादून, वो बहुत सारे एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो USSAT होता है, क्लैट होता है, LSAT इंडिया होता है, एंड ऑल्सो बोर्ड के मार्क्स पे भी वो तुम्हारा एडमिशन लेते हैं। सो एज यू कैन सी दीज आर जस्ट अ बंच ऑफ कॉलेजेस। इसके बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका आउटपुट बहुत अच्छा होता है। एज वी सीन की पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया था तुम्हें, SVKM से भी तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि अपनी एक लॉ फर्म खोल के बैठे हैं। सो ये बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस हैं, देयर आर n नंबर ऑफ अदर कॉलेजेस ऑल्सो, बट ये कॉलेजेस एट पार हैं तुम्हारे एनएलयू से। सो अगर क्लैट में तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं आया है, देन यू कैन टारगेट ऑन दीज कॉलेजेस। सो मूविंग हेड, अभी दूसरा मेजर कंसर्न है कि चलो ठीक है, आई गॉट टू नो कि मेरा क्लैट में नहीं हुआ, स्कोर अच्छा नहीं आया, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम क्लैट भी मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसे मैं टारगेट कर सकता हूं। बट अभी मेरे पास मेजर कंसर्न है कि क्लैट का पैटर्न वाज डिफरेंट एंड दीज एग्जामिनेशन का पैटर्न आर डिफरेंट। सो किस तरीके से मुझे गियर स्विच करना पड़ेगा, दैट इज अ मेजर कंसर्न।
So the first important thing, because when we started our preparation guys na, so we were only focusing on CLAT कि CLAT क्रैक करो लाइफ अच्छी, CLAT क्रैक करो बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट CLAT के बियॉन्ड हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं कि अगर बाय द वे क्लैट में अच्छा स्कोर नहीं आया तो मेरे पास ऑप्शंस क्या होंगे, मेरा मोड क्या होगा, किस तरीके से मैं प्रिपरेशन करूंगा अदर एग्जामिनेशंस की, अदर एग्जामिनेशंस कौन कौन से हैं। तो वी डिस्कस अबाउट अदर एग्जामिनेशन, बट दूसरा पॉइंट है कि अभी क्लैट के पैटर्न से प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी हम लोग को गियर स्विच करना है, तो किस तरीके से करेंगे वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बी थॉरो विद द सिलेबस। सो जिस भी एग्जाम को तुम फोकस कर रहे हो, मे बी स्लैट हो सकता है, तुम्हारा एलसैट इंडिया हो सकता है, तुम्हारा MSCT हो सकता है, किसी भी एग्जाम पे फोकस कर रहे हो उनके सिलेबस से बहुत ज्यादा थॉरो होने की जरूरत है। एंड देन सी मेक ए लिस्ट ऑफ एडिशनल एरियाज दैट यू नीड टू वर्क ऑन एज कंपेयर टू क्लैट। तो क्लैट की जब प्रिपरेशन कर रहे थे, बिकॉज 5 मेजर सब्जेक्ट्स ही तुमसे हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जाने वाले हैं, बट इन 5 मेजर सब्जेक्ट्स के लिए जब तुमने क्लैट के लिए प्रिपरेशन की थी, तुमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स को प्रिपेयर किया था बहुत इन डेप्थ में, ठीक है, बहुत सारी चीजों को तुमने इग्नोर भी किया था बिकॉज वो क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशन, तुम उन सब चीजों की लिस्ट बना के रखो दैट आर एडिशनल टू क्लैट, जो अपार्ट फ्रॉम क्लैट तुम्हारे इन सब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। हैव अ लुक ऑफ पास्ट ईयर कट ऑफ्स एंड सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ। तो अगर तुम्हें सिलेबस पता चल गया, तुम्हें एग्जाम पता चल गया, तुम्हें ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो भी ड्रीम कॉलेज है इस एग्जामिनेशन के थ्रू, फॉर एग्जांपल स्लैट के थ्रू तुम्हें सिम्बायोसिस पुणे चाहिए, MSCT के थ्रू तुम्हें GLC मुंबई और ILS पुणे चाहिए। सो इन कॉलेजेस का पास्ट ईयर में कट ऑफ क्या गया था, वो तुम्हारा थर्ड पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होगा जो तुम्हें नोट डाउन करके रखना पड़ेगा अपने टारगेट बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 110 चाहिए आउट ऑफ 150, सो 110 मेरा आएगा किस तरीके से, क्योंकि मुझे इस कॉलेज में तो चाहिए ही चाहिए एडमिशन, दैट इज माय गोल, ठीक है। अब 110 के लिए वॉट एवर एडिशनल एरियाज आई नीड टू कवर, क्या क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, उसे मैं कवर करूंगा। देन लास्ट वन इज मॉक टेस्ट इज द की। सो अभी तक यू वर प्रैक्टिसिंग ऑन अ क्लैट फॉर्मेट, तुम सिम क्लैट दे रहे थे, तुम क्लैट के मॉक टेस्ट अपेयर कर रहे थे एंड यू वर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, ठीक है। बट अभी इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रैक्टिस, तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुमने कवर करके रखा है कि जो भी तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट्स, एडिशनल एरिया जो तुम्हें कवर करने हैं वो तुमने कर लिया, बट प्रैक्टिस इज द की, सो दैट कैन बी डन थ्रू मॉक टेस्ट। सो गियर इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। यू विल हैव टू मैनेज योर बोर्ड्स ऑल्सो, आई नो दैट कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन भी हैं, बट उनके साथ तुम्हारा अगर इस फॉर्मेट से जाते हो, यू आर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट, यू आर सेटिंग अ टारगेट फॉर योरसेल्फ एंड देन यू आर प्रैक्टिसिंग थ्रू मॉक टेस्ट, देन इन सब से तुम्हारा गियर स्विच हो सकता है एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर अदर एग्जामिनेशंस आल्सो। मूविंग अहेड गाइस, द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो इज दैट कि बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, सर वेदर टेकिंग ए ड्रॉप ईयर इज फीजिबल और नॉट, वेदर वी शुड गो अहेड विद दैट और नॉट। कि अगर एक आइडिया ये भी आ रहा है दिमाग में कि क्लैट तो क्रैक नहीं हुआ एंड अदर कॉलेजेस में मुझे जाना ही नहीं है फॉर एन नंबर ऑफ रीजन, सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक कि मैंने बोल दिया कि क्लैट ही सब कुछ अच्छा है या फिर क्लैट के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे इस चीज़ को। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होंगे, अलग अलग डाउट्स होंगे, बट ये एक मेजर डाउट रहता है कि वेदर वी शुड थिंक अबाउट टेकिंग ए ड्रॉप ईयर नॉट, ठीक है। अगेन आई विल प्रेजेंट द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ गाइड नहीं करूंगा, नहीं तुम्हें यही करना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दैट वी कैन डिस्कस 1 to 1, ठीक है। वो माई प्लान के थ्रू पर्सनल डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं कि वेदर यू शुड ऑप्ट फॉर ड्रॉप ईयर और नॉट, बट इन दिस सेशन आई विल ओनली बी गिविंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग ए ड्रॉप ईयर, ठीक है। द बेस्ट, so let's discuss about the pros. The first thing is that chances of getting best possible college gives you a lot of time for preparation. So if you are taking a gap year, ठीक है, तुमने gap year ले लिया, तुमने अभी स्कोर किया फॉर एग्जांपल 50 out of 150, ठीक है, और तुम्हारे ड्रीम कॉलेज के लिए चाहिए था 95, सो यू गॉट टू नो कि 45 एडिशनल अगर मेरे पास मार्क्स होते तो मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल जाता क्लैट के थ्रू, ठीक है। अब इफ यू आर टेकिंग अ गैप ईयर, सो यू आर ओनली वर्किंग ऑन दीज 45 मार्क्स, तुम्हें 95 मार्क्स के लिए वर्क नहीं करना है, तुम्हारा 50 तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में आ गया था, तो यू विल हैव टू वर्क फॉर 45 एडिशनल मार्क्स, ठीक है। एंड देन अगर तुम ड्रॉप ईयर ले रहे हो तो तुम्हारे पास प्रेशर नहीं है बोर्ड्स का, तुम्हारे पास प्रेशर नहीं है 12th का, तुम्हारे पास कोचिंग क्लासेस का प्रेशर नहीं है, तो तुम पूरा का पूरा समय किसे डिवोट कर सकते हो, अपने क्लैट प्रिपरेशन को। सेकंड थिंग इज इन लॉन्ग टर्म दिस 1 year गैप विल नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द ब्रांड ऑफ कॉलेज फ्रॉम विच यू हैव डन योर लॉ। सो लॉन्ग टर्म में 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन, जब तुम बेटर कॉलेजेस अच्छे एनएडयू से अगर तुम पास आउट होकर के अपना करियर बनाते हो, तो शायद ये जो 1 year का गैप लिया है तुमने वो मैटर नहीं करेगा, बिकॉज नो वन विल आस्क कि तुमने अच्छा 6 साल में तुम्हारा कंप्लीट हुआ, बट इफ आर से फॉर एग्जांपल पार्टनर ऑफ एनी लॉ फर्म, नो वन विल आस्क दैट, क्या देखेंगे तुमने कहां से लॉ किया है, ठीक है। Next one is percentage of droppers in top ranks is increasing. This is very common in all the law entrance examinations.
और अदर एग्जामिनेशंस आल्सो, इट इज नो मोर ए टैबू टू टेक अ गैप ईयर, ठीक है। तो व्हेन वी एनालाइज अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आल्सो, ठीक है, जेई हो गया, नीट हो गया, जो भी एग्जामिनेशन को हम लोग देखेंगे, वी आर सीइंग दैट की परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ड्रॉपर्स का। सो 11-12 वाले बच्चे भी क्रैक कर रहे हैं, बट ड्रॉपर्स का भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। सो इट इज वेरी कॉमन नाउअडेज, ठीक है। पहले टैबू होता था कि अरे तुमने गैप ईयर लिया है, अच्छा तुम्हारा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ, बट अभी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिशंस, कितने ज्यादा एप्लीकेंट्स हो रहे हैं हर एग्जामिनेशन के लिए, सो इट्स वेरी कॉमन, इट्स नॉट अ टैबू, so you can go ahead with that. Next one is gives time to explore other good colleges also. So हो सकता है फर्स्ट ईयर when you were preparing for CLAT examination और for law entrance examination, तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थे जो तुम्हें पता थे, तुमने एक्सप्लोर नहीं किए, बट इफ यू आर गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, 1 ईयर का तुम्हें पूरा समय मिल रहा है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर CLAT अगेन, देन तुम्हारे पास टाइम रहेगा टू एक्सप्लोर अदर गुड कॉलेजेस ऑल्सो। तुम रिसर्च कर सकते हो, तुम और कॉलेज के बारे में भी पता कर सकते हो। Next is process becomes smooth for you as you have already experienced everything. तो फर्स्ट ईयर whenever you are preparing for any entrance examination, तो हो सकता है तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं हो, तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बट एक बार तुमने अगर पूरा साइकिल एक्सपीरियंस कर लिया है तो सेकंड ईयर इट बिकम वेरी स्मूथ। यू नो ऑल द ट्रिक एंड ट्रेड, तुमने किस तरीके से प्रिपेयर किया था, उसका आउटपुट क्या निकला, किस फैकल्टी ने, किस मेंटर ने तुम्हें किस तरीके से गाइड किया था, उसका आउटपुट क्या निकला। तो यू कैन जज ऑन योर ओन कि तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है, क्या तुम्हारे लिए वर्क नहीं कर रहा है। सो दीज आर द पॉजिटिव पॉइंटर्स ऑफ टेकिंग अ गैप ईयर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेगेटिव पॉइंटर्स, ठीक है, कॉन्स क्या क्या होंगे। First cons is it increases one additional year to an already long course. So as we know that ये 2 साल का कोर्स नहीं है, 3 साल का कोर्स नहीं है, 4 साल का कोर्स नहीं है, इट्स 5 years का कोर्स। So तुम्हारा इंटीग्रेटेड लॉ स्कूल में जो तुम्हारा लाइफ होगा वो 5 साल का होने वाला है, ठीक है, एंड देयर इज नो ऑप्शन टू कट शॉर्ट इट। तो 5 साल तो तुम्हें स्पेंड करने ही है, इसमें एक एडिशनल ईयर और ऐड हो जाता है, सो इट बिकम 6 years। सो काफी लंबा समय है फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि तुम यू विल सी कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स होंगे स्कूल्स के, वो 4 साल में इंजीनियरिंग करके दे आर अर्निंग अ लॉट, बट you will have to keep a patience, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रेशर ड्यूरिंग गैप ईयर एट टाइम बिकम्स हार्ड टू मैनेज। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है कि दैट व्हेन यू आर टेकिंग अ गैप ईयर प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू, तुम्हारे पास कुछ और है नहीं, एवरीथिंग what happened in the first year goes in your mind। तुम्हारे दिमाग में वो सब चीज़ें चलती रहती कि फर्स्ट ईयर में मैंने क्या प्रिपेयर किया था, किस तरीके से मेरा एग्जाम खराब हुआ। थ्रेट हमेशा रहेगा कि यार इस बार भी अगर खराब हुआ तो, इस बार भी अगर पैटर्न चेंज हो गया तो, a lot of things will go in your mind। इस वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, उसे मैनेज करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। Next one is in the era of changing exam patterns, surety of getting better college is decreasing. So as we know कि every year you will see कि students complain कि इस बार तो ये आ गया, इस बार तो ये नया आ गया, पैटर्न चेंज हो गया, या फिर anything can happen in regard to pattern, ठीक है। सो पैटर्न चेंज हो रहा है तो श्योरिटी तुम्हारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिकॉज यू वर प्रिपेयरिंग कीपिंग इन माइंड कि अच्छा ये पैटर्न में मेरा ये स्कोर आया था, आई स्कोर 50 आउट ऑफ 150, सो अगर सेम पैटर्न रहेगा आई एम प्रिपेयरिंग तो आई विल बी एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 150 दिस टाइम। बट अगर पैटर्न ही चेंज हो रहा है देन दैट पैटर्न इज न्यू फॉर एवरीवन, सो तुम अगेन स्क्वायर वन पे आ जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ स्टडीज दैट यूज्ड टू बी व्हाइल यू वर इन स्कूल एंड प्रिपेयरिंग। सो व्हाइल यू वर इन 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तुम स्कूल में बहुत ज्यादा पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें तुम देखते हो, यू आर इन दैट मोड, बट जब तुम गैप ईयर लेते हो तुम्हारे पास सब कुछ चीज़ों से ब्रेक हो जाता है, यू विल हैव टू मैनेज योर ओन। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हो, दे आर इंगेजिंग यू फॉर से 2 hours 4 hours 6 hours, नॉट मोर देन दैट, बट उसके बाद तुम्हारे पास 14 hours 16 hours 18 hours घर पे बच्चे रहते हैं। तो किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से वो फ्लो ब्रेक नहीं होने देना है, इज अ मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट वन इज माइंड मे ऑल्सो डाइवर्ट टू अदर करियर ऑप्शन रिजल्टिंग इन टू डाउट्स एंड कंफ्यूजन। सो अगर एट टाइम्स इट में ऑल्सो हैपन कि यार क्लैट अगर लग रहा है कि मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है गैप ईयर में भी, सो तुम्हारा दिमाग करेगा चलो ठीक है यार सीए कर लेते हैं, सीएस कर लेते हैं, और वाई नॉट बीबीए। सो एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शन की तरफ से तुम्हारा दिमाग जाएगा, दैट विल रिजल्ट इन टू डाउट्स एंड कंफ्यूजन। जो रिजल्टेंट क्या होगा, तुम्हारा क्लैट के एग्जामिनेशन में नेक्स्ट ईयर में भी चांसेस हो जाएंगे तुम कम स्कोर करो, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन मल्टीपल करियर ऑप्शन, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्स। तो तुम्हारे पास प्रोज भी हैं, तुम्हारे पास कॉन्स भी हैं, ये ओवरऑल तुम्हारे पास एनालिसिस है। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड। So in this session, what exactly we discussed? We discussed कि तुम्हारे पास CLAT is not an end because that is the first thing that you should keep in your mind. Second thing, what we exactly we discussed कि तुम्हारे पास career options क्या हैं, तुम्हारे पास कौन से colleges हैं जिसमें तुम target कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट व्हाट एग्जैक्टली वी डिस्कस कि अभी तो चलो कॉलेज भी पता चल गया, अभी मुझे पता चल गया कि मेरा क्लैट एंड नहीं है, तो थर्ड पॉइंट क्या तुम्हारा रहेगा कि तुम्हारे प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं अगर तुम ड्रॉप ईयर का सोच रहे हो तो,
ठीक है। तो मेजरली ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। यू कैन रीवॉच द वीडियो, यू कैन सी कि तुम्हारे लिए क्या बेटर होगा, गैप ये लेना बेटर होगा, अदर कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना बेटर होगा, किस तरीके से तुम अपना गियर स्विच कर सकते हो। बट सब चीज़ का तुम्हारा समरी क्या होगा, दैट क्लैट इज नॉट एन एंड, यू शुड कीप दैट इन माइंड। आई होप दिस सेशन वॉज इंफॉर्मेटिव इनफ। मेरे तरफ से इतना ही था। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन जस्ट type your query in the comment section. I will be more than happy to answer your queries. All the best guys for all the other examinations. If you have any doubt, any query, law mentors will be available to you in IMS. You can anytime connect with them and can discuss your query. Thank you very much.